iron will come in the center and they make the heme. First and the last two steps are in the mitochondria, rest of the steps 2, 4, 6 are in the cytosol. ALS1 and ALS2 एंजाइम दो हैं. ALS1 जो है वो लिवर जहाँ पे हीम सिंथेसिस हो रही है अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मोब्लास्ट वहाँ करता है. ALS2 is specific for the erythroid precursor cells in the bone marrow. ठीक है, that is the normoblast. So AS1 जो है it is affected by the changes in the concentration of heme in the body. Like heme is a component not only of hemoglobin and myoglobin, it is also component of heme containing proteins. तो जितने एंजाइम्स वगैरह यूज होंगे उसकी उतनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सो certain drugs like barbiturate will stimulate the ALS1 enzyme and cause increased synthesis of heme. Similarly, ALS2 जो है वो affect नहीं होता the levels of the heme in the body, heme containing proteins in the body being used, but is only affected by the level of iron. So ALS2 की regulation नहीं होती by the levels of heme in the body. ठीक है. और अब we are going to do another important topic. अच्छा, अब ये है कि ये क्या हो गया इसको स्टॉप शेयर. आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, That is ma'am. the Yeah. porphyrias. Okay, so now we are going to differentiate among the varieties and what are porphyrias, what are the different categories of, yeah, different varieties or different types of porphyrias, and what are the different type of enzymatic defects which lead to porphyrias. Okay, and what are the general features of porphyrias and how would you diagnose the porphyrias. Okay, since I told you जब आप हीम बनाते थे कि आपको सारी porphyrins बनती हैं. ठीक है, अब हीम was a large. अगर आपके एंजाइम्स जो कि यूरो से कॉर्पो से प्रोटो में जा रहे हैं और उस लेवल पे आपके कहीं ना कहीं एंजाइम का डिफेक्ट आ जाता है तो आपका जो डिफेक्ट से पहले वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, आगे वाला नहीं बनेगा. दैट यू एवरीबडी नोज, ये तो पता ही है ना आप लोगों को. एंजाइम डिफेक्ट से पहले वाली चीज़ बन जाती है और उसके बाद जो एंजाइम ब्लॉक होता है फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनता. इज दैट क्लियर? इतना Yes, तो ma'am. पता है ना आपको? ऑलराइट. सो इतना मुश्किल नहीं लगेगा अब आपको क्योंकि हमने पहले काफी डिटेल में पढ़ लिया. तो porphyrins एक्चुअली क्या होती है, ये porphyrins होती क्या है? दीज आर द साइक्लिक मॉलिक्यूल्स इन विच, जहाँ पे हमने कहा था 4 पायरोल रिंग्स जब आपकी ज्वाइन होती हैं उनको 4 मिथिलिन ब्रिजेस के साथ जब 1 पायरोल 2 3 4 को ज्वाइन करते हैं तो आपकी porphyrins बनती हैं. ठीक है, और ये porphyrin डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और डिपेंडिंग ऑन द साइड चेन्स. फर्स्ट ये बनेंगी यूरोपोर्फिरिन जिसमें एसीटेट और प्रोपेनाइल की चेंज होंगी. देन यूरोपोर्फिरिन विल बी चेंजिंग टू कॉर्पोरोपोर्फिरिन जहाँ पे आपके एल विल बी रिमूव बाय द methyl and propanate. और देन वी हैव प्रोटोपोर्फिरिनोजन जहाँ पे आपकी methyl is changed to the or methyl, sorry, propionate is changed to the vinyl in the 2 tetrapyrrole rings. ठीक है, so we have different methyl groups attached to the pyrrole rings. Either could be the acetate, propionate, methyl and the vinyl groups, as I already told you before. ये हमने पहले पढ़ा. Now this is a very important diagram. I think छोटा ही कर दूं ताकि आपको ये ऊपर वाला ये बार जो आपको आके देखे जाने इसमें अगर आप देखते हैं, these are the steps for the synthesis of porphyrins. Why I'm saying porphyrins? Because you do not see iron here. So this is the protoporphyrinogen, ठीक है, which will be forming protoporphyrin 9. And that protoporphyrin 9 iron will come in the middle. It will form the. Beta, anybody knows how to take off this ये जो ऊपर ये जो आपका बार है
ये कंट्रोल बार जो आपको नजर आ रहा है, ये किस तरह रिमूव मैम करते हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हाँ, हमें बाहर आपको नहीं नजर नहीं आ नजर आ रहा। रहा? चलिए तो फिर बहुत ही अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत अच्छा, मुझे नजर आ रहा है। आई थिंक जब मैंने विंडो ही क्लोज कर दी शेयरिंग की। चलिए, इसमें आप देखते हैं पहला स्टेप जो है, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर से? पहला स्टेप में आप देखते हैं ग्लिसरीन और सक्सिनाइल कोए, ठीक है, अमाइनो लेवलिक एसिड बना था, ठीक, और दो अमाइनो लेवलिक एसिड कंडेंस होके फॉस्फोबेलिनोजेन, जो पीछे हमने सारे स्टेप्स किए हैं, ठीक है। अब आप ये जो है, दीज आर रिलेटेड टू द पहले वाले स्टेप जो हमने पहले किए थे। और नजर आ रहा है बेटा आपको? यू कैन सी द स्लाइड्स? यस मैम आ रहा। ओके, सो दीज आर द स्टेप फॉर दिस इज ऑफ porphyrins। फर्स्ट जैसे आपके हीम के थे वही सारे स्टेप्स, glycine and non-essential amino acid succinyl-CoA in the presence of ASA1 enzyme, and we will be forming delta aminolavelic acid in which carbon dioxide decarboxylation हुई थी के लिए हमें PLP भी required था, and then this delta aminolavelic acid जो बना था ये condense होके porphobilinogen बनाई थी इसने, और इसको हमारा ALA dehydratase enzyme कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ दिस porphobilinogens when they condense together, ये वाला वो स्टेप है जो आप बेटा कोई one of the student was asking, the four ammonias are gone, that is deamination, and there is the formation of hydroxymethylene. Since you can see this hydroxymethylene, the ring is still open here, ठीक है, you can see the ring is still open. यहाँ पे जब ring close होती है in the presence of ALA synthase UPG uroporphyrinogen synthase enzyme with removal of water, देखिए इसमें बताया भी हुआ है डायग्राम में, and this removal of water, this causes the closure of the ring, and here we form the uroporphyrinogen 3, and from this uroporphyrinogen 3 we have to move corpoporphyrinogen, again यहाँ चार carbon dioxide remove होते हैं, and the enzyme will be the decarboxylase enzyme UP uroporphyrinogen 3 decarboxylase enzyme, and from this corpoporphyrinogen we made this porphyrin. इसके दरमियान में दो steps थे, वो आपकी जो मैंने डायग्राम पहले शो की है उसके अंदर है, that is decarboxylation and oxidation going side by side, and they are forming this protoporphyrin. This is corpoporphyrin oxidase enzyme, in जिसमें oxidation भी होगी और दो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीडेशन होगी, रिमूव एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। And again this protoporphyrinogen 9 is converted with the removal of 6 hydrogen to the, इसमें oxidase enzyme लगेगा, and then this is a protoporphyrin 9 is formed. And when this protoporphyrin 9 in the presence of hydrogelase enzyme, ये दो steps जो हैं last के, ये आपके mitochondria में again iron is added in the ferrous form, and this forms the heme. So this is the overall step of this synthesis, ठीक? Now, what are porphyrias? These are the group of inherited and acquired disorders. Inherited भी हो सकते हैं due to the presence of certain enzyme deficiencies. कुछ acquired हो सकते हैं like in lead poisoning, और जब आपके पास vitamin B6 नहीं है, या आपके पास poisoning है, और उन सब condition में या sometimes कोई और abnormalities हैं the heme synthesis की, वो cause कर सकती हैं, acquired cause हो सकती हैं for the development of these porphyrias. Means these are the diseases which are the diseases of the step in the heme the biosynthetic pathway. They are characterized by the increased production and excretion of porphyrins और देयर प्रिकर्सर्स, ठीक है। या तो पूरी porphyrins बन जाएंगी और आयरन के अंदर आएगा फेरस फॉर्म में, तो हीम नहीं बनेगा, और अगर ऐसा हुआ अगर लास्ट रुका हुआ है तो फिर सारे के सारे प्रिकर्सर पड़ेंगे, अदरवाइज जिस पे ये जाके एंजाइम डिफेक्ट होगा, इनहेरिट डिफेक्ट होगा एंजाइम का, और कुछ एक्वायर्ड लाइक लेड, जिस तरह आपका सेकंड स्टेप को इनहिबिट करता है और
दी ALA डिहाइड्रेटेज स्टेप को, फिर आपका वो स्टेप जिसमें आपकी विटामिन बी रिक्वायर्ड है फर्स्ट स्टेप, वो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो आपके प्रिकर्सर्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे लाइक AL एंड फॉर्फोबिलिनोजेन। ठीक है, अभी आपको स्टेप भी मैं दिखाती हूँ। So what are actually characteristics? These are the I think connection got lost. अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम, वो कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अभी ठीक है? कैन यू सी? Yes, ma'am, we can. Yes, ma'am. ओके बेटा, उनके जर्नल फीचर्स ऑफ porphyrias डिपेंड ऑन दी एंजाइमेटिक डिफेक्ट, और कहाँ पे जाके आपकी रिंग, जहाँ पे आपकी यूरोपोर्फायरिनोजन बनने से पहले अगर आपकी हाइड्रोक्सीमेथ्रिन जहाँ पे आपकी कंप्लीट होता है रिंग क्लोजर, अगर उससे पहले पहले होगा तो तमाम जो पोर्फायरियाज होंगे उनमें आपके एब्डोमिनल एंड न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, लेकिन जब आपकी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन जब आपकी जो यूरोविस्टल सिम्टम्स हैं दे आर एक्चुअली कॉज्ड बाय द न्यूरोटॉक्सिक पोर्फिरिन प्रिकर्सर्स, जिनमें आपके डेल्टा अमाइनोलेवुलानिक एसिड एंड पोर्फोबिलिनोजन है। तो अगर हम स्टेप्स पे चलते हैं, जहाँ पे आपकी फोटोसेंसिटिविटी, अगर आपकी स्किन रैशेस आते हैं तो वो उन पोर्फिरियाज में आते हैं जाके आपके एक्यूट एकदम जब आपको पेन शुरू होती है या सन एक्सपोजर, बॉडी में रैशेस और ब्लीडिंग या कुछ इस तरह ब्रूजेस और इन शुरू हो जाती है, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ दी फोटोसेंसिटिव पोर्फिरिन 9 है। ठीक है, और समटाइम जो आपकी स्किन eruptions या ब्लिस्टर्स बनते हैं, दिस इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी
water soluble porphyrin which are uroporphyrin and corpoporphyrin. So uroporphyrin and corpoporphyrin से पहले जो आपकी अगर कोई एंजाइम डिफेक्ट होगा तो वो आपके विसरल यानी कि आपके एब्डोमिनल सिम्टम और आपके न्यूरो टॉक्सिक सिंड्रोम करेगा। इसकी क्या वजह है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ से देखते हैं हम, अगर आप ये ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक एसिड बनना है, एएलए सिंथेज और पोर्फोबिलिनोजेन बननी है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डायरेक्ट पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन हुई हुई अकॉर्डिंग टू द porphyrias। तो यहाँ पे अगर ये दो जो आपके हैं बिफोर द यूरोपोर्फाइरिनोजेन प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई एंजाइम डिफेक्ट होगा, ये वाला एंजाइम या ये वाला होगा, तो आपके पोर्फायरियाज विल ओनली मैनिफेस्ट विद द एब्डोमिनल एंड द न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये समझ आ गई है? इसकी क्या वजह है? एब्डोमिनल, क्योंकि ये जो आपके दोनों हैं आपके पोर्फोबिलिनोजेन और डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक एसिड, ये विसरल नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और आपको विसरा यानी कि एब्डोमिनल पेन वगैरह होती है। एक बात हो गई। दूसरा है न्यूरोसाइकेट्रिक करते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक इसलिए करते हैं, जो आपका एएलए है, इट इज अ न्यूरोटॉक्सिक, ये इनिबिट करता है गाबा को। गाबा विच इज डेल्टा अमाइनो गाबा बिटेरिक एसिड जो होता है, इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है बॉडी में, कि ये इनिबिटरी जो आपके इनिबिटरी रिस्पॉन्सेज है ना, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। मींस क्या करता है गाबा की, क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर? इट इज अ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये ब्लॉक करता है सर्टेन ब्रेन सिग्नल्स को, जिसमें जैसे के एंड आल्सो डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द सर्टेन नर्व ब्रेन सेल्स, ठीक है। जब जब ये ब्रेन कर इनिबिट करता है तो ये आपको कामिंग देता है, मींस आपकी फीलिंग ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर वगैरह को कम करता है। सो इट इज अ न्यूरो सपोर्टिव, ठीक है ना, आपके न्यूरो ब्रेन को नॉर्मल स्टेबलाइज कंडीशन में रखने के लिए आपका होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, ठीक है। बिकॉज ये आपके ब्रेन में आके जो अगर कोई चीज इसको इनिबिट करेगी तो वो न्यूरोटॉक्सिक होगी। जो डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक एसिड है, ये न्यूरोटॉक्सिक है बिकॉज इट इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ गाबा। तो इसीलिए न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आएंगे और आपके विसरल होंगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। ये बात समझ आ गई आपको जी विजरल या दोबारा नहीं आई? बता दो, विजरल वाले दोबारा बता दो। विसरल जो आपके ये दो कोई भी आपके एरियाज के अंदर एंजाइम डिफेक्ट होगा इन द बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, वो प्रेजेंट कर देगा विद द क्लिनिकल फीचर। दो तीन तरह के क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। एक आते हैं विसरल, जो कि आपके विसरास या नर्व एंडिंग्स हैं उनको स्टिमुलेट करे, लाइक जो डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक और पोर्फोबिलिनोजेन है, ये दोनों आपकी विसरल नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल पेन फील होती है। दूसरा जो आपका डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक एसिड है, ये न्यूरोटॉक्सिक है बिकॉज इट इनहिबिट्स द फंक्शन या इट इनहिबिट्स द एक्शंस ऑफ गाबा। GABA is the neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter which keeps the brain in a calm and the normal condition। अगर कोई चीज ये इसको इनिबिट करेगी तो आपको एग्जाइटी भी होगी, आप रेस्टलेस होंगे, आप को गुस्सा भी आएगा, ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस में आएंगे। सो दिस अमाइनोलेवुलिनिक एसिड न्यूरो टॉक्सिक। अगर एंजाइम डिफेक्ट इस लेवल पे होगा before the formation of uroporphyrinogen, so these will be the products will be raised, and these will be only capable of producing the visceral and the neuropsychiatric problems, ठीक है। Why are you fighting at back? जी, बात समझ आई है कि नहीं आई यहाँ पे बच्चों? Where are you students, where are you? किधर चले गए हो रिपीट करते हो, किसी का तो समझ नहीं आई। बेटा? ये चौथी दफा मैं रिपीट कर रही हूँ, बस इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब मैं आपसे बता रही हूँ कि एंजाइम जो होगा वो अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को बताएगा। अगर एंजाइम डिफेक्ट इस लेवल पे है जिसमें डेल्टा अमाइनोलेवुलिनिक एसिड आपका बढ़ जाता है, मींस के आपका ये एएलए डिहाइड्रेटेज एंजाइम डिफेक्ट है,
तो आपका आगे वाली प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगी, ALA बनेगा। ठीक है, अगर अगला वाला एंजाइम आपका डिफेक्ट है तो आपका पोर्फोबिलिनोजिन से हाइड्रोक्सीमेथाइलिन नहीं बनेगी, बल्कि ये दो चीजें बढ़ जाएंगी। अगर ये दोनों चीजें बढ़ती हैं तो ये सिर्फ विजुअल और न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसेंसिटिव नहीं है। ALA जो है वो न्यूरोटॉक्सिक क्यों है कि ये गाबा के जो आपके न्यूरो इनहिबिटरी इफेक्ट्स है उनको इनहिबिट करता है और ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। और फॉर्फोबिलिनोजन और ALA दोनों आपके विसरल नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं। जब आपके यूरोपोर्फिरिनोजन और कॉर्पोपोर्फिरिनोजन बन जाते हैं, दीज आर दी, जब आपकी पूरी हाइड्रोक्सी मिथिबलिन के बाद रिंग हो गया तो यहाँ से फोटो सेंसिटिविटी होगी। अगर आपका यूपी सिंथेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो आपका यूरोपोर्फिरिनोजन बन चुका है। यूरोपोर्फिरिनोजन आपका बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके बाद सारी चीजें पीछे पड़ेंगी ना। तो अगर आपका यूपीजी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो यूरोपोर्फिरिनोजन बन गया तो यहाँ से आपको फोटो सेंसिटिविटी आ जाएगी, बिकॉज दीज आर दी water soluble photosensitive porphyrin which can cause photosensitivity. Similarly अगर आपका लास्ट स्टेप पे प्रोटोपोर्फायरिन 9 है, ये सारे यहाँ का ऑक्सीडेज एंजाइम जो आपका इनहिबिट हुआ है, तो इसका मतलब कि आपके पिछले वाली सारी प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें आपकी सेंसिटिविटी भी होगी, आपकी विस्ट्रल नर्व एंडिंग भी स्टिमुलेट होंगी और न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होंगे। अगर आपका ये एंजाइम यहाँ पे इनहिबिट होता है या टाडा में, तो आप देखेंगे डीकार्बोक्सिलेज में कि आपके यूरोपोर्फिरिन बन गए हैं, तो फोटो सेंसिटिविटी भी आ जाएगी, आपके विस्ट्रल और आपके न्यूरोटॉक्सिक भी आएंगे सिम्टम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब आगे चलते हैं। सो जनरल फीचर एक्यूट एब्डोमिनल पेन, फोटो सेंसिटिविटी एंड न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर आपके टेट्रापैरॉल रिंग बनने से पहले आपका कोई एंजाइम इफेक्ट है, यानी कि हाइड्रोक्सीमेथिबलिन जब रिंग क्लोजर हो जाता है, यूरोपोर्फिरिन बन जाती है, अगर उससे पहले का कोई प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ न्यूरोसाइकेट्रिक और एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर आपकी जब रिंग क्लोजर हो जाती है, सिमिलरली आपकी रिंग क्लोजर हो जाती है, उसमें आपकी फोटो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, बिकॉज दीज आर द वाटर soluble porphyrin which are यूरोपोर्फिरिन एंड कॉर्पोरफिरिन एंड these are responsible for the photosensitivity। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, और बिकॉज इसमें फोटो सेंसिटिविटी की वजह है कि प्रेजेंस ऑफ द वाटर soluble porphyrin, यूरोपोर्फिरिन एंड द कॉर्पोरफिरिन। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई यहाँ तक? द एक्यूट न्यूरोविसरल न्यूरो नर्वस सिस्टम और विसरा के जो सिम्टम्स हैं, दीज आर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरोटॉक्सिक porphyrin precursor जो कि डेल्टा माइनोलेनिक एसिड एंड porphobilinogen, and which can also stimulate the visceral nerves and cause the abdominal pain। ठीक है, और जो फोटो सेंसिटिविटी है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर soluble porphyrin and the corpoporphyrins। And what is the result? Why this photosensitivity? Because of the colorless porphyrinogen, यानी कि porphobilinogen जो थी वो colorless है, जब ये colored porphyrins पे change होती है तो ये photosensitivity करती है, because due to the formation of sensitizing molecules। बस इतना ही आप लोग याद रखें। AL and porphobilinogen they cause excitation of the visceral pain fibers, पहले बता चुकी हूँ। And AL also inhibit the action of inhibitory neurotransmitter GABA because of the structural resemblance। ठीक है, एंड आयरन जो है उसका कुछ रोल है पोरफायरियाज की इम्प्रूवमेंट में, बिकॉज आपको पता है कि जब पोरफायरियाज आयरन देते हैं तो वो हैपेंस के इट इज चेंज इनटू द हीम, और उसमें they can also the condition। ठीक है, so these are the steps with enzyme defect, glycine to delta aminolevolinic acid ALA synthase, and from delta aminolevolinic acid to porphobilinogen ALA dehydratase, and this is porphobilinogen deaminase to urophorininogen। अगर यहाँ से होगा तो this will causes acute intermittent porphyria। ऑब्वियसली ये फोटोसेंसिटिव नहीं होगा कि हमारा यूरोपोर्फिरिनोजन नहीं बना, और कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया फोटोसेंसिटिव नहीं होगा। अब आगे चलें, यूरोपोर्फिरिन बन गया था कलरलेस compounds which are photosensitive, sorry water soluble compound which are photosensitive। so अब जितने पोरफायरियाज इसके बाद होंगे उनके अंदर फोटोसेंसिटिविटी होगी, मगर साथ साथ पीछे वाले भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इन दे विल हैव
clinical manifestation of neurotoxic abdominal and the photosensitivity. मैंने आपको पहले बताया था ये यूरो जब कॉल जाएंगी उसके बाद फोटोसेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। जितने भी porphyrias होंगे these will be photosensitive. This is cutaneous tarda, hereditary porphyria, porphyria variegata, and hereditary protoporphyria. So we will take one by one. So for, now porphyria is broadly grouped in two varieties, that is erythropoietic जो आपके erythroid cells में होंगे, ठीक है? And then we have which because the porphyrin they will in the erythrocytes in the normoblast, ठीक है? So these are again two types. These are one is a congenital erythropoietic porphyria and other hereditary same, ठीक है? Hepatic porphyria जो कि liver में होंगे. These are the acute intermittent porphyria, cutaneous tarda, hereditary corpoporphyria and porphyria ligata. अगर हम जाके देखें पीछे इसके अंदर अगर डायग्राम में acute intermittent porphyria जो है वो फोटोसेंसिटिव नहीं है, बाकी तमाम फोटोसेंसिटिव है, ठीक है? ये आपको मैं इसकी भी शेयर कर दूंगी. That will be easier for you to recall and remember. So ALA acute hepatic porphyrias में हमारे पास ALA dehydratase है, acute intermittent आता है, hereditary corpoporphyria and variegate. hepatic के अंदर हमारे पास ये कैटेगरीज आती हैं, ठीक है? acute intermittent porphyria corpa and variegata and then we have cutaneous tarda, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? अगर आप इसमें देखते हैं acute intermittent porphyria ये फोटोसेंसिटिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास साइकेट्रिक और एब्डोमिनल सिम्टम्स होंगे. हेरिडिटी कॉर्पोपर्फेरिया जो आपका यहाँ बन रहा है ये फोटोसेंसिटिव होगा, इसमें ना सिर्फ फोटोसेंसिटिविटी होगी बल्कि विसरल और दूसरे भी सिम्टम्स होंगे न्यूरोसाइकेट्रिक और वेरिएटा में भी इसी तरह ये तमाम सिम्टम्स होंगे, ठीक है? Now we take them one by one. Hepatic porphyrias, they are characterized by the acute attacks of GIT tract, neuropsychiatric, and sometimes may be accompanied by the photosensitivity depending on the enzyme defect. ठीक है? Acute intermittent porphyria में क्या होता है कि the enzyme is uroporphyrinogen 1 synthase. तो जब uroporphyrinogen 1 synthase यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो गया है, अगर आप देखें इस डायग्राम में, this is the uroporphyrinogen synthase 1. तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास acute intermittent porphyria, तो हमारा यूरोपोर्फायरिन बना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि फोटोसेंसिटिविटी आएगी नहीं. So we will be having only the neuropsychiatric and the abdominal symptoms, ठीक है? So in this case, metabolites will be ALA and porphobilinogen in the urine. Patients are not photosensitive. It is very important acute intermittent porphyria. इसमें शोर आ जाता है. So you should be knowing that what are the metabolites which will accumulate. These are the ALA and the porphobilinogen, and the patient will not be photosensitive. That means that they will only have abdominal pain and neuropsychiatric problem, which could be either obviously ALA is a neuro, it blocks the activity of GABA, so the patient can be anxiety हो सकती है और stress हो सकता है और sometime maybe जो आपकी orientation भी लॉस हो सकती है, ठीक है? यूरिन सैंपल्स ऑफ porphobilinogen को हमेशा हम जो है डार्क बॉटल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं बिकॉज porphyrins they are not excreted or elevated in blood, so उनकी फोटोसेंसिटिविटी नहीं होती, मगर जो आपके जब सन को एक्सपोज करते हैं इसलिए इनको नहीं डालते क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि कौन से इसमें होगा. अगर आप इनको वाइट कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो सनलाइट पड़ेगी तो ये कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है? नाउ जिस तरह आपको बताया कि विमेन जो होती हैं इनमें एक और एमसीक्यू है, क्योंकि ये जो सीवियर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती यानी कि फिर सीवियर सिम्टम्स नहीं होते बिफोर द मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो है ये आपकी एएलएस जो सिंथेसिस एएलएस एंजाइम है, एएलएस 1 एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं. सो बिफोर मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज आपको पता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स कम होते हैं, तो इसलिए जो आपकी जो porphyrias की जो clinical presentation है वो कम, it is less severe in the menarche when the sex hormones are less, and after menopause when there is also decrease in the level of sex hormones, because the sex hormones have direct stimulatory effect on the ALS synthase. जब ALS synthase पे effect करेंगे तो आपका
डेल्टा अमाइनो लेवलिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, और जब वो बनेगा तो आपको ऑर्फेरिन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट इज आल्सो अनदर एंड सिमिलरली ड्रग लाइक बार्बिटरेट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इट कैन इंड्यूस द ALA synthase an enzyme and can also precipitate the attack of porphyria, because ऐसे ही वो बार्बिचरेट होगी तो आपकी सिंथेसिस आपकी जो porphyrin की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ALA डिहाइड्रेट इज जो एंजाइम है पोर्फोबिलिनोजिन सिंथेज एंजाइम है। अगेन इसमें सिर्फ हमारे पास विसरल और आपके बंडल होंगे, और उसके साथ साथ आपकी न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होंगे, बिकॉज आपकी अभी जो वाटर सॉल्युबल यूरोपोर्फिरिनोजन नहीं बनी हुई, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन टू जेंटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया। आपने देखा ये हाइड्रोक्सी मिथाइलिन, ठीक है, ये बन गई, रिंग क्लोजर हो गया है हाइड्रोक्सी मिथाइलिन के बाद, ये यूरोपोर्फिरिनोजन बन गई है, ठीक है। सो द डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी इन यूरोपोर्फिरिनोजन 3 सिंथेज एंजाइम। यूरोपोर्फिरिनोजन 3 सिंथेज एंजाइम क्या करते हैं कि ये आपकी यूरोपोर्फिरिनोजन 3 बनाता है, ठीक है। सो अगर आपका एंजाइम यहाँ पे कॉर्ड में ये डायग्राम बनी हुई है, हाइड्रोक्सी पोर्फोबिलिनोजिन फिर हाइड्रोक्सी मिथाइलिन, ठीक है, यहाँ पे रिंग क्लोजर हो गया। अब हाइड्रोक्सी मिथाइलिन यूरोपोर्फिरिनोजन 3 बनाना है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर ये एंजाइम यहाँ पे डिफेक्टिव हो गया है तो क्या होगा कि हाइड्रोक्सी मिथाइलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फिरिनोजन 1, और फिर वो आपकी सिमेट्रिकल सीरीज शुरू हो जाएगी, विच इज नॉट एक्चुअली बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इन ह्यूमंस। तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपकी पॉर्फेरिन नहीं बनेगी, ठीक है। जो हमें बायोलॉजिकली एक्टिव चाहिए प्रोटोपॉर्फेरिन 9 बनाने के लिए 3 सिमेट्रिकल नहीं होगी, बल्कि ये पाथवे 1 की तरफ चला जाएगा। सो फ्रॉम हाइड्रोक्सीमिथाइलिन देयर विल बी यूरोपोर्फेरिन इन 1, porphyrinogene 1 converted into europorphyrin 1, and corpoporphyrinogene 1 will be converted to corpoporphyrinogene 1. So यहाँ क्या के so what will happen, they are not that porphyrins, and they accumulate in the tissue and they're excreted in the urine, ठीक है। Because of the production of this euro corpo and europorphyrin when one, the urine accumulation will be pink to dark red in color, और आप teeth और जो bones हैं उनमें भी red color आ जाएगा, ठीक है। और fine appearance होगी, और red brown teeth which are also called the एरिथ्रोडोंटिया, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर कोई भी और चीज नहीं आएगी, एज बिकॉज यूरोपोर्फिरिनोजन 3 इज नॉट फॉर्म, बल्कि जो आपकी बॉडी के अंदर या यूरिन के अंदर आपका जो बिकॉज एज आई टोल्ड यू द porphyrin are colored compounds, so there will be accumulation of pink to red pigment in the teeth, bone and the urine. That is the due to the presence of europorphyrin 1 and the corpoporphyrin 1, ठीक है। बिकॉज वो आपकी सिमेट्रिकल सीरीज की बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, यहाँ पे जब ब्लॉकेज होगी तो कहीं ना कहीं तो उसने कोई चीज तो बनानी है ना। अगर वो यूरोपोर्फिरिनोजन 3 नहीं बनाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइलिन के बाद एंजाइम ही ब्लॉक हो गया विच इज यूरोपोर्फिरिनोजन 3 सिंथेज एंजाइम, तो आपने हाइड्रोक्सी मिथाइलिन यूरोपोर्फिरिन 1 की तरफ चली जाएगी और कॉर्पोपोर्फिरिन 1 बनेगा, और वो जो आपकी स्टेनिंग करेगा टीथ, बोन और यूरिन की, ठीक है। So that is due to the blockage of the europorphyrin. Now we move on to the erythropoietic. This is due to the deficiency. That, that means the ATP it is. So अब आपको पता है कि दिस इज द लास्ट स्टेप, इससे पहले वाले तमाम प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होंगे। तो जब प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होंगे तो इसमें हमारे पास ALA भी होगा, पोर्फोबिलिनोजन भी होगा, यूरोपोर्फिरिनोजन भी होगा, कॉर्प्रो भी होगा। सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विल बी फोटोसेंसिटिव, ठीक है। और उसके अलावा बिकॉज ये जो प्रोटोपोर्फिरिन 9 ये एक्यूट एकदम जो आपकी फोटो सेंसिटिविटी है, बिकॉज इट इज द लिपिड porphyrin and they cause acute photosensitivity, so patients will be photosensitive, ठीक है। In this case it is very painful also. Now we move on to the other form, which is Peyronie tarda. In this, when the europorphyrin 3 has been formed, that means the ring has been closed, and the जो porphyrin has been porphyrinobilinogen to the europorphyrinogen, and from as I told you before कि euro से आगे आप
अगर दिस एंजाइम इज डिफेक्टिव हेयर यूरोपोर्फिरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, तो कॉर्पोफॉर्फिरिनोजन 3 नहीं बनेगा। जब ये बनेगा तो इससे पहले प्रिकर्सर्स तो होंगे, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया बिकॉज इसमें पेशेंट्स are photosensitive as well as they will be having and the abdominal symptoms as well. और जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। इसका एंजाइम डिफेक्ट याद कर लें, ये कभी कभार आ जाता है, which is the failure occurring as a result of the deficiency in the uroporphyrin 3 decarboxylase। आपको बताया था मैंने कि decarboxylase यूरोपोर्फिरिनोजन के बाद कार्बोपोर्फिरिनोजन है, so this will result in the formation of Putenia tartari। तो अगर आपको कोई ऐसी एक एमसीक्यू आ जाता है, इसमें स्किन eruptions दिखाते हैं एंड एंजाइम इफेक्ट बता देते हैं, जब Putenia tartari most common porphyria because most common sorry the connection got lost again. Can you see the slide or not? आपको नजर आ रही है कि नहीं? No, ma'am. नो मैम। अभी तक समझ आई है porphyrias की? क्या समझ आई है? Which is the most important porphyria? Which is the most common porphyria? Cutenia tartari, ठीक है। और इसका एंजाइम डिफेक्ट क्या है? What is the enzyme defect? Photosensitive. ये देखिए यूरो यूरोपोर्फिरिनोजन 3 डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो क्या मतलब है कि कॉर्पोपोर्फिरिन नहीं बनेगी, तो हमारे पास क्या चीज एक्यूमुलेट हो जाएगी? यूरोपोर्फिरिनोजन 3 या यूरोपोर्फिरिन 3 एक्यूमुलेट होगी, ठीक है। सही है। तो ये सेंसिटिव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। होंगे। हाँ होंगे, और उसमें कुछ इसके अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द ऑफ द सेंसेस ऑफ आपके पहले स्टेप को या दूसरे स्टेप को जो चीजें अपग्रेड करेगी, तमाम इसके अटैक को एग्रीवेट भी करेगी, ठीक है। सो अगर कोई ऐसी डायग्राम आती है कि जिसमें आपका यूरिन है एंड नॉर्मल फॉर्मेट यूरिन और ये red हो गया है, ठीक है, because of change in the color of the photosensitivity or the urine is also colored change हो जाता है। आपको बताया था मैंने, high colored urine होता है porphyrias में, ठीक। Now we move on to the hereditary corpoporphyria। Hereditary corpoporphyria में भी enzyme will be the ये जो आपका enzyme है, इसमें अगर देखें डायग्राम में, this is the corpoporphyrinogen 3 oxidase enzyme। Obviously corpoporphyrinogen है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास यूरोपोर्फिरिनोजन भी होगा, ऊपर से पोर्फोबिलिनोजन भी होगा, आपके पास ALA भी होगा। तो patient will be photosensitive as well as they will also have the neuropsychiatric and the abdominal problems as well। Now this is the variegata, porphyria variegata। इसमें प्रोटोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, मतलब जब प्रोटोपोर्फायरिनोजन ने प्रोटोपोर्फायरिन में चेंज होना है ना लास्ट में, तो ये एंजाइम है, एंजाइम डिफेक्ट। इसका मतलब इसमें
सिर्फ प्रोटोपोरफायरिन होंगी, बल्कि इसमें कॉर्बन भी होंगी, इसमें यूरोप भी होंगी, इसमें पॉस्फोबिलिनोजिन भी होंगी, इसमें एएल भी होगी। तो पेशेंट्स विल बी फोटोसेंसिटिव और नॉट इन दिस केस। होंगे ये फोटोसेंसिटिव या नहीं होंगे? होंगे होंगे। तो 100%। इसमें तो दूसरे सिग्नल भी आ रहे हैं, कैटरिक भी और सिग्नल भी आ रहे हैं। ठीक है, बस खत्म होने वाला बेटा। और मैम क्वांटिफायर, ये आला आप कह रही थी, मतलब समझ नहीं आ रही। जी बेटा, फिर आपने मतलब जो नीचे वाले भी हैं यूरो बिलिनोजिन सीरीज वगैरह में भी आप आला वगैरह के जा रही है, मुझे समझ आ रही है इसमें कि मतलब उनमें कहाँ से ये आ रहा है। तो उनमें इसलिए आ रहा है, मैं वापस जाती हूँ। अगर हम इधर जाते हैं फर्स्ट डायग्राम पे, मेरा ख्याल में आपको छोड़ा है अभी, बोल्ड करें इधर।
तो आवाज आ रही है बेटा? आर यू देयर? आई थिंक कोई Yes, ma'am. लगता है कि Yes, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम हुई सारे मैंने क्या हो ही नहीं रहा था। आई थिंक कोई ऐसे ही कोई जर्नल कोई एरर आ गया था इसके अंदर। आप लोगों का भी इंटरनेट गया था थोड़ी देर के लिए? हाँ चले, विल ट्राई टू मैम आपकी बात सुना रही है। मैम आपकी फिर से कोई आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम मेरा ख्याल है इंटरनेट के अंदर। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन चलिए, हमारा थोड़ा सा लेक्चर रह गया, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। और मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटे जो आप मिस आपकी सही आवाज नहीं आ रही। मैम आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है। यस मैम, वैसे ही 2 to 3 मिनट लगेगा। हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर 5 years, जहाँ पे आपके इनहेरिटेड कंडीशंस नहीं है, जब भी कोई और प्रॉब्लम्स हैं और 5 years को
स्टिमुलेट करे, जैसे लेड पॉइजनिंग और आयरन डेफिशिएंसी है। लेड पॉइजनिंग में आपको पता है कि वो ALA डिहाइड्रेटेज और फेरोचेलिटेज यू एंजाइम को दोनों को इनहिबिट करता है, और आयरन जो है वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल्स इन द एरिथ्रॉइड सेल्स के लिए जरूरी है, ठीक है। और बिकॉज अगर नहीं होगी तो रेड सेल जल्दी आपके लाइज कर जाएंगे या ब्रेक डाउन हो जाएगा। पोरफायरिया कैसे डायग्नोज करते हैं इनको? मेटाबोलाइट्स जो आपके हीम सिंथेटिक पाथवे के और एंजाइम्स का रेलेवेंट से है, और कुछ DNA बेस्ड टेस्टिंग फॉर द हेरिडिटरी। ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं कि आपने ऑब्वियसली को इनहिबिट करना है, ठीक है। तो फॉर ऑल द अप्रोप्रिएट एक्यूट इंटरमिटेंट परफेरियास, ठीक है, जो कोई भी आपकी ड्रग उसको आप जो कि सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रही है उसको आप निकाल देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। हेमेटिन जो कि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करती है, सो इट विल रिप्रेस द सिंथेसिस ऑफ ALA सिंथेज एंजाइम, एंड दैट इज ALA सिंथेसाइज नहीं होगा तो फर्स्ट जो स्टेप है वो नहीं होगा, विच इज द कमिटेड और द रेट लिमिटिंग स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ALA डेल्टा अमाइनो लेवलेनिक एसिड, ठीक है। समटाइम्स ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच मील जो है वो भी इसको इनहिबिट करता है, बट मैकेनिज्म इज नॉट एक्चुअली नोन सो फार। और इसलिए जो आपके जो पोरफायरियास के अटैक्स हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय स्टारवेशन एंड ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट एंड फेनिटोइन सोडियम, ठीक है, जो आपके एंटी एपिलेप्टिक होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोरफायरियास। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। जी बेटा। कैसे है मैम स्टारवेशन? बेटा स्टारवेशन भी आपके ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि स्टारवेशन का मैकेनिज्म तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जाहिर है ये आयरन और ये तमाम चीज़ें इसमें कम होंगी, और दूसरा ये है कि बेसिकली आयरन ही जो आपका लेवल कम होगा, तो जिस तरह मैंने आपको बताया आयरन अगर कम होगा तो इट ऑल्सो कैन स्टिमुलेट पोरफायरियास, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हीम नहीं बनेगा, पीछे सारी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। बट एग्जैक्टली ये इतनी दो चार चीज़ों का मैकेनिज्म इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बट यू कैन से, मगर ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती भी नहीं है आपको। जो चीज़ें आएंगी वो यही होंगी कि डाटा क्या है और उसकी क्या फोटोसेंसिटिविटी क्यों होती है, और दिस एंजाइम डेफिशिएंसी जिसकी वजह से ये हुआ है, और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरफायरियास, और बाकी ये है हाउ वुड यू डायग्नोज एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होंगी। व्हाट इज द रेगुलेशन या effect of what is the acquired porphyrias and what are the hereditary porphyrias, आप पता तमाम आपके ये तमाम एंजाइम जो होंगे वो डिफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैम ये भी मैम सारे इनकी लिपिड कोड ट्रीटमेंट गाइड तो नहीं लिखी? ये ट्रीटमेंट यही है जो मैंने लिखी है, फिक्र ना करें, गलत नहीं है ये, क्योंकि हम एक लिपिन कॉर्ड से देखते हैं, हम आपके हमने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को पूरों को एड्रेस करना होता है, सो वी टेक द इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट, हार्पर में लिखी हुई है ये इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। इट्स रिटन इन हार्पर। लाइक सेंड कर दीजिएगा। चलें अब मुझे बताइए व्हाट मैम इज Okay, जी right. बेटा। मैम मैम ये मैंने आपसे पूछा था कि हर चीज में मतलब कि एक्चुअली स्टार्ट में हम लोगों ने ALA का मतलब सिर्फ रोल पढ़ा था, उसके बाद लेकिन जो बाकी आप इन बारे में बता रही थी उनके डिजीजेस के बारे में, तो उसमें भी आपने ALA का मतलब बताया है, तो उसमें क्या मतलब उनका हुआ रोल? जी आई एक्चुअली डोंट गेट यू, व्हाट आर यू आस्किंग, क्या पूछ रहे हो मुझे बताओ। ALA बेटा पहला मैम स्टेप ALA का, अच्छा मैम है। एक्चुअली मैंने ALA आपसे पूछा देखिए था कि फर्स्ट जो स्टेप जो है ना, डेल्टा अमाइनो लेवलेनिक एसिड बनना है, ठीक है, पहला स्टेप। जो उसके आपके सबस्ट्रेट्स थे ना, लाइक सक्साइल को A, ग्लाइसिन, और ये दोनों कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम व्हिच इज ALAS synthase type 1, and they will form the product which is the first step. It is the formation of delta amino levulinic acid which is ALA, ठीक है। अगर ALA बनेगा तो आगे जाके पोरफिरिन्स और हीम बनेगी ना, ठीक। अच्छा कुछ ओके चीजें मैम। जो अब आपका एंजाइम इफेक्ट, आपने मैंने इस पे बहुत अच्छी 2-3 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, अगर आप लिपिन कॉर्ड रख के पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। बस आपने ये याद रखना है कि हाइड्रोक्सी मेलाविलिन जहाँ के बाद 4 टेट्रापायरोल रिंग क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद फोटो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, यानी कि जहाँ से यूरोपोर्फिरिनोजन बननी शुरू हो गई हैं which are water soluble and then cause the photosensitivity,
फ्रॉम देयर जितने भी पोर्फायरियाज होंगे वो तमाम फोटोसेंसिटिव होंगे, लेकिन उनके साथ साथ उनके अंदर न्यूरोसाइकेट्रिक और एब्डोमिनल पेन भी प्रिकर्सर्स होंगे, क्योंकि उस पहले वाले प्रिकर्सर्स भी प्रेजेंट होंगे ना ब्लड के अंदर। ठीक है, सिर्फ हमने वहीं ब्लॉक नहीं कर दिया ना, उससे पीछे तमाम चीजें पड़ी हुई होंगी। सो इनमें सिर्फ एडअप क्या होगा कि जब यूरोपोर्फायरिनोजिन के बाद आपके कोई पोर्फायरिया आएगा वो फोटोसेंसिटिव होगा। न्यूरोसाइक्ट्रिक और एब्डोमिनल विसरल पेन्स तो उसको होंगी, लेकिन उसमें फोटोसेंसिटिविटी ऐड होती चली जाएगी। ये बात समझ आ गई? यस मैम। हाँ, अब आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। मैम ठीक है, स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। अब स्लाइड सेंड नहीं करूंगा तो फिर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मुझे ये बताएं। पहले बताएं समझ आई है कि नहीं लेक्चर? आ गई समझ है। कोई नहीं आई? आ ही गई है, मैम जबरदस्ती आई आई है। है लेकिन मिस काफी थोड़ी सी नहीं भी आई। थोड़ी सी जहाँ से नहीं आई बताओ, अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन एड्रेस मैम दैट नहीं आई वाला पार्ट। ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिटेशन वाला आपने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, वो नहीं समझाया। एंड प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम? हमने हीम। क्या बनाया? हीम। अब हीम हमें बन गई है, हमें जितनी रिक्वायर्ड थी। अब क्या करेंगे? आपके आपके जो पिट्यूटरी हार्मोन्स और रेगुलेशन क्या, डाउन रेगुलेशन होती है ना, जब एक हार्मोन बन जाता है उसके बाद वो कहता है अब नहीं चाहिए, अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। ऐसा ही होता है ना डाउन रेगुलेशन। तो जी। जब हीम एक बन गई, ज्यादा हमारे पास आ गई है, हमें हमारे तुम्हारे एंजाइम्स को और तमाम चीजों को वो सरप्लस है और हमारा तमाम एक्टिविटीज हो रही है, तो हम उसको थोड़ी देर के स्टॉप करेंगे ना। अदरवाइज जो ज्यादा बनेगी उसको हम कहाँ फेंकेंगे? So that is when the requirement is completed, there's regulation और वो कहता है अब स्टॉप हो जाओ, अभी हमें मजीद जरूरत नहीं। जब जैसी नीड होती है वो फौरन जाके उस एंजाइम को स्टिमुलेट करना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले से एंजाइम है, और दोबारा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके अब मैम, बात समझ आ थैंक गई? यू। हाँ, ये इसी जी तरह मैम होता है कि जब समझा। आपकी कोई चीज ज्यादा बन जाती है तो फिर उसको आप थोड़ी देर के लिए उसको हॉल्ट पे ले आते हैं। ठीक है, जब आप उसको हॉल्ट पे लाते हैं, वो कैसे लाते हैं कि आप उसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुको, अभी हमें नहीं जरूरत है इस चीज की, विल टेल यू व्हेन वी नीड इट। बॉडी को दोबारा रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एंजाइम एएलएस को सिंथेज को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें आपके एक्टिवेशन या सेंसर आपकी रिक्वायर्ड है, तो वो आपका दोबारा शुरू हो जाता है बनना, और फिर वो दोबारा पोर्फिरिनोजन बनेगी। पहले आपकी प्रोफोबिलिनोजन बनेगी, फिर यूरोफॉर्फिरिनोजन बनेगी, कॉर्पो, फिर प्रोटोपॉर्फिरिन, फिर हीम बनेगी। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर आपकी आयरन है हीम के अंदर, फेरस से फेरेट फॉर्म में चलेगी, हेरिटेन है वो भी, या हिमेनिन है वो भी आपके इनहिबिटरी इफेक्ट देगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको फॉल्टी हीम तो नहीं चाहिए ना, आपको असल वाली हीम चाहिए जिसमें फेरस है और आपकी, ताकि अटैचमेंट हो सके ग्लोबुलिन के साथ और वो ऑक्सीजन कैरी कर सके बॉडी के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई थिंक सो आप लोग भी टायर्ड हो गए होंगे। कल हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ हीम एंड जॉन्डिस। ठीक है, वो हम कल करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए बेटा। आई एम गोइंग टू शेयर स्लाइड विद द सीआर, और वो आपको भी शेयर कर देंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई बात अगर पूछनी हो? मैम एक आप आज क्वेश्चन लेक्चर, है। जी बेटा। मैम जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का चैप्टर था उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन में से क्या पूछना है आपने? मैम अल्फा जीन फैमिली और बीटा जीन फैमिली को आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकती हैं? अल्फा जीन और बीटा जीन फैमिली में आपके पास जो अल्फा जीन है उसके हम कल कर लें इसको, इफ यू डोंट माइंड, आराम से। मैं क्योंकि मेरे पास टाइम भी ओके होगा और मैम। कल लेक्चर भी शॉर्ट है, मैं आपको जो कंप्लीट जो है ना हीमोग्लोबिन सिंथेसिस राइट दी फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन से एंड तक ले जाएंगे, ताकि आपको फिर ये क्लियरली आ भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो भी रिपीट रहेगा, सम टाइम आ जाता है आपका सवाल। बहुत really एक आधी दफा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कि आपकी हीमोग्लोबिन के सेंसेस अंदर जो है आपकी, बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में आता है। ठीक है, मैं कल आपको ये में सारी बता दूंगी, वो डायग्राम भी ले निकाल के रखूंगी लेक्चर की, ताकि उसको फिर आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, आप मुझे एक प्राइवेट मैसेज छोड़ दें ताकि मैं भूलूं ना, ताकि सुबह मैं, आई थिंक 11:30 आपका लेक्चर है कल। कल कितने बजे लेक्चर है आपका? टुमारो इज माय न्यू लेक्चर।